Hello friends, in this video we are going to discuss about the growth kinetics of bacteria. That is one of the example of growth kinetics of microorganism. Or we are going to discuss about the growth rate constant as well as generation time. So which is also called as doubling time. So before discussing about in detail about growth of bacteria, so we must know what is growth. So in terms of bacteria, growth is nothing but, so what is growth? So growth in case of bacteria or microorganism, so it is simply increase in number, increase in number of bacteria, so it is called as growth. So however, in case of multicellular organism, growth is increase in size or increase in mass, increase in length, height, etc. So here simply, so growth in terms of bacteria is only increase in number of bacterial cell. So bacteria increase their number simply by the process of division. So division in case of bacteria is means of binary fission. What is mean by binary fission? So in case of binary fission, so here binary means here we are getting two cells. So means bacteria start with one cell. So suppose this is the one cell of bacteria and it is going to multiply, means it will produce exactly identical cells or two exactly identical cells. So then it is called as binary fission. This is called as binary fissions. Means one cell is dividing into two equal half cells. So this process of production of two cells or formation of two cells from one cell, so this process it is called as binary fission. Means this process is like fission, division. Means most of the bacteria which divide by binary fissions, so will gives rise to two exactly identical cells. So whatever the growth kinetics that we are going to discuss is about the bacteria which divide by binary fissions. So now moving towards the next part. So by binary fissions, so each cell will again gives rise to again two identical cells. Okay, two cells. Again two cells. Means one division cycle will gives rise to two cells. So two division cycles. So here will gives rise to four cells. So next round of division will gives rise to eight cells. Next round will gives rise to 16 cells. So here we can observe a typical pattern. Means cells are producing in typical pattern. So what this pattern or what kind of pattern this is? So now we can write this pattern like this. Means so we are getting 2 to the power n cells after some kind of divisions. So here n represent number of generation. So what is mean by generation? If bacteria divide into two daughter cells, means it has completed one generation. If again another bacteria divide into two daughter cells, means this bacterium is also completing its one generation. So this number is
represented by n, that is number of generation. So here bacteria produce two cells by going through one generation. So produce four cells by going through two number of generation, and so on, 3, 4. So here if we put this number, that is 1, 2, 3, 4, we will get the same number. So suppose a bacterium has completed 4 number of generations. So if we write this here, n is equal to 4, then so 2 to the power 4, so that will becomes 16. That is 2 multiplied by 2 multiplied by 2, that is 16, means it is producing 16 number of cells. Means we can have some correlations with this, that is with this equation. Means we can calculate the number of cells if we know the initial number of cells. So that is what is about the growth kinetics of bacteria. So this is the simple introduction if a bacterium is dividing by the process of binary fission. So now moving towards the next part, that is growth kinetics of bacteria. So bacteria also required a specific period of time, okay, a specific period of time to complete this generation. So the time required by bacteria to complete one generation, so it is called as its generation time. Okay, so it is denoted by G. Okay, G. That is time required by bacteria to complete one generation. So it is called as its generation time. So now we have idea about generation. If bacteria is producing two daughter cells, so means it is completing one generation. So it must require some sort of time. So that time is given by G here, and it is called as generation time. Okay, generation time. Okay. So how to calculate n? How we know the n? How we know the generation time G? Then another terminology that is called as growth rate constant. That is, each bacterium has growth rate constant in particular environmental condition. So growth rate constant. So it can be represented by K. Like G, it is represented by K. So what is K? That is growth rate constant. So it is number of generations completed per unit time. Okay, so growth rate constant. So we have T, that is time. We can calculate that time when we have started to count the number of bacterial division cycles. Okay, so we can have time T, or we have G, we may have K, we may have M. So we can calculate all these numbers. So G can be mathematically written as G is equal to, so number of generations completed, time required by bacterium to complete one generation. So time
required per generations mean number of generations, how many number of generations ये बैक्टीरिया कंप्लीट करता है, सो ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं. सो दिस कैन आल्सो बी इजीली कैलकुलेटेड. एंड के कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो के इज इक्वल टू, के इज नंबर ऑफ जनरेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, दैट इज n डिवाइडेड बाय t. मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल्स है. मींस we can write this. So G is nothing but the reciprocal of K, or K is nothing but it is the reciprocal of G. Okay, so ये हम सारी की सारी चीजें क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. So we can calculate all these things because, लेकिन हमें एक दिक्कत जाती है, so that is बैक्टीरिया ने कितनी जनरेशंस कंप्लीट की है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो फॉर दिस वी हैव स्पेसिफिक ग्रोथ इक्वेशन. सो ये सारी की सारी चीजें आप क्या कीजिए? नोट डाउन कीजिए. ओके, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजें समझेंगे. सो हम अब जाएंगे कैलकुलेशन की तरफ, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ जनरेशन. So at any time, so calculation for n, that is number of generation, or it is also called as mathematical expression for growth kinetics or growth of bacteria, or mathematics of growth of bacteria. So as how to calculate the number of bacteria after time t. So as हमने पहले ही कुछ पॉइंट जो है इसमें के जो पॉइंट्स है कुछ डिस्कस कर रखे हैं. So at any time t, for example small t, it is represented by small t. So the number of bacteria at time t is given by nt. So nt means क्या होगा यहाँ पे? So nt is number of bacteria और number of cells. Okay, cells भी बोल सकते हैं. After time t, nt, n0. So it is number of cells or bacteria at time t is equal to 0. ठीक है, इनिशियल पीरियड में एकदम जहां पे आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, एंड n इज इक्वल टू n तो पता ही है हमें क्या होता है, तो इट इज द नंबर ऑफ जनरेशंस. ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? अभी nt की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट इज nt एंड हाउ टू कैलकुलेट nt. ओके, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है? सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नंबर ऑफ जनरेशंस. कितनी नंबर ऑफ जनरेशंस वो बैक्टीरिया ने क्या की है? पास की है. तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन है, दैट इज nt is equal to n0 into 2 to the power n. मतलब कौन से टाइम में हमारे मीडियम में कितने नंबर ऑफ सेल्स है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सो इट डिपेंड्स ऑन, किस चीज पे डिपेंड करेंगे कि हमने इनिशियली कितने नंबर ऑफ सेल्स डाले हैं. अब ये पता है अगर बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से डिवाइड होता है तो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ जनरेशन, दैट इज रेज टू द पावर ऑफ 2. क्योंकि 2 क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि एक डिवीजन के बाद एक सेल कितनी सेल्स हमें प्रोड्यूस करके देता है, सो दैट गिव्स राइज टू 2. सो दैट्स व्हाई दिस 2 to the power n is written here. Okay, अब हमें
पता क्या नहीं है, सो व्हाट वी डोंट नो इज n। n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अभी ये है पावर में, सो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, अभी लॉगरिथम लेना पड़ेगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें इसको। सो बाय टेकिंग लॉगरिथम, सो टेकिंग log to the base 10 of both side of equation, दोनों साइड का क्या करेंगे हम, log लेंगे। so now log of nt is equal to log of n0 प्लस, अभी मल्टीप्लीकेशन में है तो लॉग लेने के बाद एडिशन होगा यहाँ पे प्लस। अब हम कैसे लिखते हैं log 2 to the power n, so since we know that log 2 to the power n is equal to n log 2, ठीक है, इस प्रकार से हम लॉगरिथम लिखते हैं। सो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, n log 2। हमें कैलकुलेट क्या करना है, n को कैलकुलेट करना है, सो n। सो रीअरेंजिंग द इक्वेशन, अभी क्या होगा, ये देखिए n को यहाँ पे लिख देते हैं हम। सो हमें n कैलकुलेट करना है। सो बाय चेंजिंग द साइड ऑफ दिस, दैट इज, सो इट विल गिव्स राइज टू log nt, log nt अपनी जगह पे ही रहेगा। सो माइनस log n0, ठीक है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है log 2, इसलिए हम यहाँ पे इसको कहाँ पे भेजेंगे, डिवीजन में भेजेंगे। सो log 2, सो दैट विल गिव्स राइज टू, अभी हमें पता है log 2 कितना है, log 2 की वैल्यू आती है 0.301। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम log 2 is equal to 0.301। ये वैल्यूज आप याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम कैसे लिखेंगे, सो log nt माइनस log n0 डिवाइडेड बाय log 2 कितना है, 0.301। ओके, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, और सो n इज इक्वल टू, और ठीक है, और लिख लेते हैं यहाँ पे, और n इज इक्वल टू, अभी हमें पता है 1 डिवाइडेड बाय 0.301 यानी कितना होगा, देखिए, सो 1 डिवाइडेड बाय 0.301 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएंगी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.3 के आसपास। तो इसलिए यहाँ पे डिवीजन में जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लिकेशन में ला लेते हैं, दैट विल गिव्स 3.3 into log of nt minus log of n0, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया हमारा, अब कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे, मतलब इसको और फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है हमने। अगर हमें n कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, कोई भी सेल का नंबर जो है, जो इजीली हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग स्प्लिट प्लेट मेथड या फोर प्लेट मेथड से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मेकिंग सीरियल डायलूशंस। इसके ऊपर अलग अलग जो वीडियो है हमारा सीरियल डायलूशंस का, वो बना के रखा है, तो वो, और या फिर स्प्लिट प्लेट मेथड का वो बना के रखा है, वहां पे आपको पूरे के पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे कि आप सेल का नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम कैलकुलेशंस के ऊपर फोकस करेंगे। हाँ, तो n इज इक्वल टू 3.3 इंटू लॉग ऑफ nt माइनस लॉग ऑफ n0, मतलब n0 क्या करेंगे आप, टेस्ट ट्यूब में कितनी नंबर ऑफ सेल्स है वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, वहां से सैंपल लेंगे, उसको सीधा प्लेट पे ट्रांसफर कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे, और नेक्स्ट डे उसका काउंटिंग करेंगे। nt कैलकुलेट करने के लिए मतलब कोई भी टाइम, अभी 0 टाइम पे आपने लिया था सैंपल, 2 आवर बाद 3 आवर बाद लेंगे सैंपल, सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, नेक्स्ट डे पे कॉलोनीज का काउंटिंग करेंगे। अब जो कुछ भी नंबर आएगा यहाँ पे डाल देंगे आप। फॉर एग्जांपल अभी देखिए n की वैल्यू क्या है, 3.3। अब n0 जो है हमारा कितना है,
हमारा n0 था समझो 3.3 इंटू, ठीक है, n0 था समझो हमारा 10⁻², ओके, 10⁻², और nt है हमारा 10⁻⁴, ओके। सो 10⁻, log of 10⁻⁴ माइनस log of 10⁻²। तो यहाँ पे सिंपल हमारे कैलकुलेशंस क्या आएंगे देखिए। सो log of 10⁻⁴ यानी कि इट इज इक्वल टू 4, ओके। सो log of 10⁻² इज इक्वल टू 2, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। सो log of 10⁻⁴ इज इक्वल टू 4 log 10। अब log 10 की वैल्यू हमेशा याद रखिए, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे 4। तो उसी प्रकार से log of 10⁻² कितना आएगा, 2 आएगा। सो दैट विल बी, सो 3.3 इंटू, सो 4 माइनस 2, सो दैट विल becomes 3.3 into 2, so which is approximately 6.6, okay। कितना आएगा इसका आंसर, 6.6। मतलब हाउ मेनी जनरेशंस बैक्टीरियम हैज कंप्लीटेड, 6.6। अगर इनके बीच में का टाइम हम बोले फॉर एग्जांपल दिस, ये जो आपको नंबर मिला है इट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर, ठीक है, टाइम अगर लिखे आप, सो इन टाइम t इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 6 आवर्स, 6 आवर्स में लिख लेता हूं, ठीक है, 6 आवर्स लिख लिया। तो अभी हमें ये जो टाइम है नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए काम में आएगा। सो वी हैव n, दैट इज नंबर ऑफ जनरेशंस, कि ये बैक्टीरिया कितनी नंबर ऑफ जनरेशंस। अब also we have time t, that is within 6 hours, कितनी कंप्लीट करता है, means the given bacterium completes 6.6 number of generations within 6 hours. Then how to apply these calculations for calculating growth rate constant? So growth rate constant क्या होता है, ये constant होता है हर बैक्टीरिया के लिए, मतलब so कितनी number of generations bacterium is completing within given period of time, okay। so that is called as its growth rate constant। so हमारे पास दोनों वैल्यू है। so पहले growth rate constant कैसे कैलकुलेट करें। so growth rate constant, हमने growth rate constant को k से रिप्रेजेंट किया था। so it is given by, so that is n divided by t, n divided by t। n means क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ जनरेशन, ठीक है, फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा डिराइव किया है इक्वेशन, नंबर ऑफ जनरेशंस कंप्लीटेड विन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू है 6.6 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है हमारा, दैट इज 6 आवर्स। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली, सो 1.1, ओके। सो 1.1 जनरेशन इज कंप्लीटेड पर आवर। ये क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हो गया, ग्रोथ रेट कांस्टेंट यानी k का वैल्यू हो गया। अब हम g कैसे कैलकुलेट करते हैं, g मतलब so g that is generation time, that is g is given by, so इसका रेसिप्रोकल लेना है, that is time required to complete one generation, generation time, time ही है, ठीक है, time required to complete वन जनरेशन। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय, ओके, 6 डिवाइडेड बाय
6.6. So which is approximately equals to 0.9 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी. ओके, तो दैट इज जनरेशन टाइम. 0.9 ये क्या होगा इसका, अभी टाइम मतलब आवर में आएगा, है ना, 6 आवर्स. ओके, 0.9 आवर. ओके, 0.9 आवर मतलब अप्रोक्सीमेटली ये मिनट में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे पहले से हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट इज 6 multiplied by 60, so that will gives rise to how many minutes? 360 minutes. So 360 divided by 6.6. तो इसका आंसर हम मिनट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए, so 360 divided by 360 minute divided by 6.6. ओके, तो ये n की वैल्यू है. तो यहाँ पे अगर सिंपली कैलकुलेट करते हैं आप, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा. अराउंड 50 मिनट्स के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी. ओके, 50 के आसपास, 50 या 55 के आसपास इसकी क्या होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है, मतलब ये बैक्टीरिया 50 to 60 मिनट के बीच में का टाइम इसको लेगा. ओके, यहाँ पे लिख भी दिया मैंने 55 मिनट फॉर एग्जाम्पल. तो इतना टाइम ये बैक्टीरिया किस चीज के लिए लेगा, सो फॉर कंप्लीटिंग वन जनरेशन टाइम. अब मैथमेटिकली भी हम इसको लिख सकते हैं. देखिए, अभी k इज इक्वल टू, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, सो k इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे, सो k इज इक्वल टू n. अभी n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सो n इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. ओके, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय t. अगर लिखा तो n की वैल्यू कितनी है हमारी, दैट इज log nt माइनस log n0 डिवाइडेड बाय 0.301 मल्टीप्लाइड बाय t, यानी कि टाइम. ओके, तो इस प्रकार से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. और सो इट कैन बी रिटन एज 3.3 into log of nt minus log of n0 divided by t. ओके, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब g को भी मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो g कैन आल्सो बी मैथमेटिकली calculated. So now we can calculate the g. Okay, so g can also be calculated. So first, g मतलब क्या होगा, so it is called as generation time, that is g, or it is also called as doubling टाइम. ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए इसके नाम में लिखा है जनरेशन टाइम, मतलब यहाँ पे t की वैल्यू दी है, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज डबलिंग टाइम. मतलब क्या होगा, मतलब nt. सो nt मतलब क्या होगा, इट इज पॉपुलेशन इज डबलिंग. डबलिंग मतलब किससे डबल हो रहा है पॉपुलेशन, जो हमारा इनिशियल पॉपुलेशन था उससे डबल हो रहा है, n0 into 2. nt कितना होगा, पॉपुलेशन डबल होगा. कब होगा डबल, विथ इन जनरेशन टाइम. अब यही वैल्यू अगर हम ऊपर की इक्वेशन में डाल देते हैं, दैट इज k इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सारी की सारी चीजें. सो k इक्वल टू लॉग ऑफ nt की वैल्यू कितनी आएगी फिर यहाँ पे, सो 2n0 माइनस लॉग ऑफ n0 डिवाइडेड बाय 0.301. अब g कितना है, सॉरी टाइम कितना है अपना, जनरेशन टाइम, क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है.
डबल कब होगा, कितने देर में होगा, डबलिंग टाइम में होगा, यानी कि जनरेशन टाइम में होगा। तो इसलिए टी की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय जी। जी से इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए इसको और सिंपलीफाई करेंगे हम। अब log ऑफ 2 n0 यानी कि कितना होगा, जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे कि देखिए आप log का रूल है, हमें पता है log a into b is equal to log of a plus log of b। ठीक है, ये रूल हमें याद रखना है यहाँ पे। सो ये रूल यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। सो यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा, log of 2 plus log of n0 minus log of n0 divided by 0.301 into g। अब देखिए यहाँ पे log of n0 minus log of n0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब log of 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास ऑलरेडी है, log of 2 is 0.301। okay, so it is written as, so k is equal to log of 2 is 0.301। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गए, डिवाइडेड बाय 0.301 into g, so which is equal to 1/g। ठीक है, यानी कि ग्रोथ रेट कांस्टेंट क्या है, हमने पहले ही देखा था, इट इज n divided by t, that is number of generations completed within given period of time। लेकिन जनरेशन टाइम क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट गिवन जनरेशन। तो ये इजीली हम दोनों एक दूसरे की वैल्यू से निकाल सकते। तो अब यहाँ पे g कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे होगा, सो 1/g। सो g का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ g इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ k। ठीक है, so g is equal to generation time is equal to reciprocal of growth rate constant। और growth rate constant कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, so we already have all values। ठीक है, सारे की सारे वैल्यूज हमारे पास होती है और उससे हम ये सारे के सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये पूरा नोट डाउन करना है आपको। अगर किसके कैलकुलेशंस करने हैं हमें, अगर जनरेशन टाइम के कैलकुलेशन करने हैं। जनरेशन टाइम इज नथिंग बट टाइम रिक्वायर्ड टू डबल द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन n0 से कितना होगा, उसके डबल, डबल मतलब 2। ठीक है, 10 है सेल तो उसके डबल कितनी होगी, 20 सेल्स होगी। ओके, और उसके लिए जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड एज जनरेशन टाइम।